So in this session, we will discuss about how to proceed in the last 15 days in the exam. Exam is scheduled on 19th of October and already we are on 4th of October. So we have invited Mr. Saurabh Anand. He qualified this exam in the last recruitment, and he will share some of his ideas. How he how you can prepare, and you can ask your questions from him. So I will request that you please share your issues, whatever problems or issues, challenges you are facing in the preparation of this exam, and you can type in the chat box. Meanwhile, as we will start interaction, then we will allow few people to speak, unmute yourself and speak. Okay. So once again, please start typing in the chat box. How is your preparation going on, and what support, what problems you are facing, what support you need from us. आपको किस तरह की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, तो आप लोग अपने इश्यूज को शेयर कर सकते हैं. Okay. How to start? It is getting difficult. How to start revision? Okay. Please tell the preparation strategy for last 2 weeks, including increasing speed for calculations and sources to practice MCQ. Is there an important topic list? What areas should we focus on? Okay. Queries को आप यहीं पे पोस्ट कीजिएगा, ठीक है? Soon Mr. Saurabh will join, so then he will start answering to queries. From where to cover quality MCQs? Whether detailed study is required for topics like ITC standard posting. Okay. Revision summary. Okay. टेलीग्राम पे मैसेज की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम लाइव सेशन में हैं, तो आप यहाँ पर मैसेज कर दीजिए. ओके. ओके, आपकी जो क्वेरीज हैं वो सारी आंसर की जाएंगी. मिस्टर सौरभ विल बी ज्वाइनिंग. और बेसिकली एएस एंड इंडेस एमसीक्यूज. ओके, देखिए सबसे आसान तरीका है कि जो हमारे 2022 के एमसीक्यूज हैं, you keep in mind those MCQs and prepare according to that. देखिए क्या टॉपिक को कितनी डेप्थ में प्रिपेयर करना है. एक ही सिंपल तरीका है कि 2022 का पेपर को उठाइए और उसको रेगुलरली एनालाइज कीजिए. जितना हो सकता है उसको एनालाइज कीजिए, जितना हो सकता है उसको अच्छे से जो है अपने बार बार उसको रिपीट करते रहिए, बार बार उसको देखते रहिए, है ना. दैट इज द ओनली वे यू कैन चेक, बिकॉज ये एग्जाम बहुत रेगुलर एग्जाम नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास में बहुत सालों के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. तो जो भी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं 2022 के, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे. 2022 के क्वेश्चंस को आप बार बार गो थ्रू कीजिए, ठीक है. Okay, sir, after reading theory, when we are opting out MCQ, time taken and number of right answers are not as per cutoff required. What to do? Get off confidence. देखिए MCQs based questions पेपर का एक ही तरीका होता है, that you should keep practicing. और जो आपके टेस्ट पेपर्स हैं उसको भी फिर से रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये आपका ट्रायल एंड एरर मेथड होता है. आप टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते हो, तो आपका जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, दैट इज आल्सो फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, है ना. तो आंसर आप जब दे रहे हो तो यू शुड नॉट थिंक दैट आई हैव टू रेक्टिफाई और आई हैव टू गेट द करेक्ट आंसर इन द फर्स्ट गो. फर्स्ट गो में करेक्ट आंसर मिले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट. Yes, so question है sir, in GST shall we cover exemption chapter as there are some linking but it is not in syllabus. देखिए अगर linking है तो you should cover it. In UPSC exam there is no shortcut, so I will suggest कि if there is a slight interlinking also, you should definitely read that topic. कोई shortcut नहीं है, ठीक है. तो आप अपनी तरफ से जो भी आपको लगता है that even if there is a remote linking, you should definitely read that topic for the safety purpose, because in UPSC exam you cannot always draw the boundary line. We cannot say that they will not ask this question or that question. That's completely in the hand of UPSC and they can definitely ask this question. Okay.
So we have Mr. Saurabh Sanand with us. Good evening, sir. Hi, good evening. Welcome, Saurabh. So let me introduce Saurabh. Saurabh qualified the assistant course director exam in the recently held exam that was conducted in 2022, and he's currently posted in GST department in Delhi, and he has been our student. It is my privilege to host him, and most welcome, Saurabh. Many people are looking for your guidance right now. This exam is becoming more and more popular nowadays. तो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, so people will be looking for your guidance. काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं. I'll just brief some of those questions from the chat box, क्योंकि आपके आने से पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं. So just मैं brief कर रहा हूँ. कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं. What should be the preparation strategy for last 2 weeks, including increasing the speed for calculations and sources to practice MCQs? Is there an important topic list? What areas we should focus on? मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ important topic बता दो जहाँ से मतलब क्वेश्चन आने ही आने हैं. So you can start by sharing your own strategy. आपका क्या Secondly, the question which is asked now, सर मैं एक्चुअली हमारे कोर्स डिस्क्लोज नहीं किए थे हमारे टाइम पे, तो आई डोंट नो, बट मेरा ऑल इंडिया रैंक सेकंड आया था. Okay, wonderful. How many marks did you get? Do you have some score? Maybe sir, I don't know exact. My interview was good, and I think I might have scored in written. I might have scored 230 or something. Very good, wonderful. Or something, but my interview was very good, so I don't know. Maybe in the interview, sir, I got more marks. I don't know exactly. Wonderful. Fine. So I think you can start by sharing your own plan. या आप जो भी सजेस्ट करना चाहते हो पहले आप अपनी तरफ से शेयर कर दीजिए, फिर आप क्वेश्चन ले सकते हैं. I think that will be better. Okay. So first of all, the plan which I took was कि मेरे को था कि first of all मैं I will go into what is the syllabus of this particular exam. तो मैंने एक सिलेबस सबसे पहले लिखा कि क्या क्या इस टॉपिक में पूछा जा रहा है. देन मैंने क्या किया सर कि मतलब मैंने पास्ट ईयर के भी क्वेश्चन देखे, बट इवेंचुअली इफ यू विल कंपेयर द 2022 एग्जाम ना, उसके पेपर की क्वालिटी इज मच बेटर देन द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड अर्लियर, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड वो टॉपिक्स कवर किया था उसने. तो आई थिंक सर इस एग्जाम में भी आई थिंक कि और टफ हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो ये एग्जाम दे रहे हैं वो फर्दर इंक्रीज ही हो रहा है. तो यूपीएससी उसको भी कंसिडर करके पेपर सेट करता है. तो आई थिंक थोड़ा टफ तो होगा इस बार, बट जो पहले मैंने किया था, जैसे ये मैंने क्या किया कि CRA 1 है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे आपको पता होने चाहिए. CRA 1 क्या है कि उसका जिस्ट है, तो आप उसको गो थ्रू कर लो, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे कि वेदर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को आप सैलरी पे कर रहे हो, वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और नॉट. इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे आएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल फॉर्म पार्ट. ये हो गया, प्लस कॉस्ट शीट. इससे पता चल जाएगा आपको नेचर ऑफ एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, उसका फर्दर ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ हो रहा है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लोगों को करना चाहिए. प्लस कॉस्ट ऑडिट जिन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, या कॉस्ट रिकॉर्ड रूल जिन कंपनीज पे एप्लीकेबल है, वो भी देखना चाहिए लोगों को जब वो कर रहे हैं. और जो मेरे ख्याल से टोटल जो टॉपिक्स हैं वो अराउंड 17 टॉपिक्स होंगे जो इस बार भी जो लेटेस्ट आया है. तो आप सबसे पहले जो भी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें कि दे फर्स्ट शुड राइट दैट सिलेबस. अब उसमें से क्या है कि इफ़ यू आर ऑलरेडी CA या CMA आप हो, तो आपने वो मैक्सिमम सिलेबस किया हुआ है. बस आपको क्या है कि आपको सिर्फ वो गो थ्रू करना है उन टॉपिक्स को. कैसे गो थ्रू कर सकते हैं? मैक्सिमम टॉपिक्स ये नहीं होंगे, जैसे CA फाइनल में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल पूछेगा. इसमें क्या है कि आपके पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है, क्योंकि 120 मिनट्स में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं, और ना कैलकुलेटर भी आपके पास नहीं होगा. तो आपको
ये कैलकुलेशन आपकी एकदम वो होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। मतलब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। तो वो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि अभी तक क्या था कि सीए फाइनल में हम कैलसी से काम करते थे, तो थोड़ा सा वो वीक हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं अल्टीमेटली, लोगों के आते हुए भी लोग नहीं कर पाते। तो ये आपको करना है, प्लस माइनस मार्किंग भी है। तो एक जुडिशियस मिक्स होना चाहिए आपको कि आप कितना जान रहे हो, क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट, मतलब जब अगर क्वेश्चंस आपने गलत किए तो नेगेटिव मार्क्स के कारण वो आपका पॉइंट्स तो कट जाएगा। तो ये आप करने चाहिए। फिर जितने इंडियस हो गए, इंडियस का भी काफी, और डाइवर्सिफाइड इंडियस पूछा था। जैसे मेरे टाइम पे मुझे याद है कि अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम क्या है, लीजेस के केस में, प्लस जो है सिग्निफिकेंट सेगमेंट क्या होता है सेगमेंट रिपोर्टिंग के केस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का क्या होता है, कैसे होता है। तो और प्लस एक छोटा सा वो पूछा था, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या होते हैं। तो इंडियस भी आपको पूरा करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरे करने हैं। फिर एक टॉपिक जो नॉर्मली हम सीएज में नहीं करते, वो है कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, ये जो है, या सीएजी का रोल, ये बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं करते, ये भी टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये भी आप जो भी तैयारी कर रहा है वो उनको ये ध्यान देना चाहिए। और कॉस्टिंग मेथड्स, जैसे कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो देन इन दैट केस पेनिट्रेशन प्राइसिंग यूज करेंगे, या हम कुछ और कॉस्टिंग मेथड्स या प्राइसिंग मेथड जैसे मार्केट प्राइस मेथड यूज करें। वो सब है प्रोटेक्टिव। जैसे एक मैंने पढ़ा था कि प्रीडेटरी प्राइसिंग होता है, प्रीडेटरी प्राइसिंग और पेनिट्रेशन प्राइसिंग में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन पेनिट्रेशन इज यूज, व्हेन प्रीडेटरी यूज। नॉर्मली प्रीडेटरी होता है कि जब कॉस्ट प्राइस से भी आप कम पे अगर आप बेचने लगते हो। पेनिट्रेशन में है कि आप बहुत कम मार्जिन पे बेचते हो, या लेकिन प्रीडेटरी में और भी कम हो जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आपको प्राइसिंग या ट्रांसफर प्राइस के आपको पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें, मतलब मेरा मेरा ये फोकस था कि मैं सिलेबस को 100% कंप्लीट करूं और क्वेश्चन सॉल्व करूं। पास्ट ईयर के मैंने कर लिए थे, प्लस उस टाइम क्या था, सीएमए इंस्टीट्यूट ने ना एक वो मैं निकाला था कि एक टेस्ट पेपर्स टाइप के निकाले थे, तो वो मैंने किए थे। और बट अगर, और अब जैसे क्या हो रहा है कि लास्ट ईयर के बाद से अच्छे टेस्ट पेपर्स आ रहे हैं, तो वो भी अगर आपके पास टाइम है, अगर इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, तो आप उसको अपने एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन कैलकुलेशन के साथ सॉल्व करना इज टफ। जैसे मैं पर्सनली मैंने 114 या 115 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 5 मैं भी नहीं कर पाया था। तो ये टफ है। अगर आप, और वो 5 मुझे आते थे शायद, मैं और भी मेरा बेटर रैंक होता। तो ये अगर आप, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, क्वेश्चंस आपको विदाउट कैलसी आपको सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जैसे कैलकुलेशंस हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड वाले कैलकुलेशंस नहीं है कि आपको बोलेगा कि ये इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या है, ये वो। आपको बेसिक क्वेश्चंस ही रहेंगे कि जैसे कस्टम्स ड्यूटी कैसे कैलकुलेट होती है, उसमें बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के बाद आपको जो सेस लगता है वो किस पे लगता है, ये सब चीज़ें होंगी। तो बेसिक कैलकुलेशंस आपके सही होने चाहिए, और विदाउट कैलसी आपको आना चाहिए करने का। तो ये मेन फोकस होना चाहिए। I think you have laid down very important foundation कि सिलेबस पूरा करना है और कैल्सी का यूज नहीं, उसके लिए प्रिपेयर होना है। काफी सारे लोग इंडेस के लिए सोर्स का पूछ रहे हैं कि व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट सोर्स फॉर द एएस एंड इंडेस। इंडियस का वो आप आपके पास जो भी आपने सीए फाइनल में किया होगा वो कर सकते हो, या अदरवाइज अगर आपके पास अभी नहीं है, तो क्विक रिवीजन मॉड्यूल जो है सीए फाइनल का या सीए इंटर का होगा, तो वो आप कर सकते हो। या वेरी गुड। ठीक है, क्विक रिवीजन वाला कर सकते हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, हम देख लेंगे अगर अवेलेबल हो पाएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हम पोस्ट कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए।
कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए तो आई थिंक प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और तो कोई शॉर्टकट नहीं है। जी। मोर एंड मोर एमसीक्यूज रिक्वायर्ड। और भी क्वेश्चन है कि क्या जीएसटी वगैरह में कितने एक्सटेंट तक जाना चाहिए, लाइक जीएसटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट सिलेबस नहीं दिया हुआ जी। है सिलेबस में, तो शुड द स्टूडेंट्स रीड एंटायर सिलेबस और शुड इट बी लिमिटेड? सिलेबस भले ही इंटायर नहीं दिया हुआ है, बट द टॉपिक्स मतलब वो 80% कवर हो जा रहा है, क्योंकि उसमें रिफंड भी है, आईटीसी भी है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी है। तो बहुत ज्यादा कवर है। सिर्फ क्या कवर नहीं है, वो रिटर्न्स है, ऑडिट भी कवर्ड है कि ऑडिट अंडर जीएसटी कैसे होता है। तो मोर और लेस 70 to 80% तो कवर्ड है। अब आपको क्या करना है, जैसे हमारे टाइम में पूछा था, प्लेस ऑफ सप्लाई का पूछा था, और वो ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि उसमें क्या था कि किसी थर्ड पार्टी को सेल होता है जैसे, फिर उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो देन इन दैट केस आपको जैसे मेजर पॉइंट्स क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको पता होनी चाहिए, शेड्यूल 1 2 3 जो है वो पता होना चाहिए, टाइम ऑफ सप्लाई पता होना चाहिए, आईटीसी के कंडीशंस पता होने चाहिए कि कब अवेल होता है, 17 5 जो आपका रिवर्सल का कंडीशंस है, मतलब ये व्हेन आईटीसी इज नॉट अलाउड वो वाला कंडीशंस, प्लस रिवर्सल के जो रूल्स हैं 41 42 43 38 39 वो आपको पता होने चाहिए। ये ये चीजें आपको, ये स्किप नहीं कर सकते आप इन सब चीजों को। जो सिलेबस है जैसे दिया हुआ है, चार्जेबिलिटी आपका है आपके सिलेबस में, स्कोप ऑफ सप्लाई है, टाइम ऑफ सप्लाई है, वो सिलेबस आप देखिए और उन टॉपिक्स को तो पूरा ही करिए। जो टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, रिटर्न्स के नहीं दिए हुए हैं, आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन ऑडिट, ऑडिट आपको करना है कि वो टाइम लिमिट क्या है कि 3 मंथ्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है, या उस टाइप का वो करना पड़ेगा, या स्पेशल ऑडिट के क्या कंडीशंस होते हैं। सर सॉरी, आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था कि अभी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, तो चैट बॉक्स को थोड़ा सा आप ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज अ गुड अप्रिसिएशन। गवर्नमेंट अकाउंटिंग की आपने बात की, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के लिए सर मैंने क्या किया था कि सीएमए का वो एक पेपर है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का, उसमें गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी है। मोर और लेस वो आप देखोगे ना, जैसे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एक बार आप गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें टॉपिक एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस है, प्लस गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जैसे जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो क्या है। तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बेसिकली वो डील क्या करता है कि कब हमने ग्रांट्स दिया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, लोन्स दिया, गारंटी दी, क्या ट्रीटमेंट है उसका। तो वो बेसिकली वो करता है। ओके। एक क्वेश्चन आया है कंपनी लॉ, तो कंपनी लॉ के अंदर भी शुड वी डू ओनली द टॉपिक्स व्हिच आर मेंशन्ड, और शुड वी डू समथिंग एल्स, क्योंकि ये आपका कंपनी और कंपनीज लॉ हो गया, कस्टम्स हो गया, जीएसटी हो गया, एएस एंड एएस, ये कभी ये ओपन एंड टाइप के टॉपिक्स हैं, मतलब इसको कितना भी कर लो कम है, तो क्या उसमें फोकस होना चाहिए कंपनीज लॉ में, कस्टम्स में? बेसिकली फोकस ये होना चाहिए कि जो टॉपिक्स दिए हुए हैं आप उसको तो 100% कंप्लीट करिए। अब जैसे कंपनीज में दिया हुआ है, डिविडेंड दिया होगा, ऑडिटर के ड्यूटीज दिए होंगे, उनके पावर्स दिए होंगे, फिर कब व्हेन ऑडिटर इज इनएलिजिबल हो गया, या फ्रॉड के केसेस के केस में क्या होता है, उन पे क्या पेनल्टीज लगती है, क्या 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, क्योंकि ये सब न्यूज में है बहुत सारे। अब अभी आप देखोगे नाफरा का ये सब के जजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें ऑडिटर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, या उन पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई जा रही है, या सिविल लाइबिलिटी उन पे फिक्स की जा रही है। तो आई थिंक कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। सेकेंडली, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होते हैं, उनके बेसिकली कंडीशंस क्या होते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, ये सब बेस आपको होने चाहिए। तो ये 4 5 टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप उनको पूरा गो थ्रू करिए। एक जो हमारे टाइम में एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो नहीं दिया हुआ था, वो था सीएसआर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। जैसे शायद मेरे ख्याल से ये पूछा गया था कि विच आफ्टर विच कमेटी क्लॉज 49 आया था, तो आप जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का करोगे आपको पता चल जाएगा कि वो कुमार
बिरला कमेटी का है, या फिर जैसे सेबी एक्ट जो है आप देखोगे तो उस समय जो कमेटी के बेसिस पे सेबी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, वो आप ध्यान दे सकते हो। ये सब चीजें, ये आप बेसिक चीज है। ये देखो मैं बताऊं ये क्या है, ये बेसिक सवाल है। यूपीएससी सीए के एग्जाम नहीं है जो आपसे ये पूछेगा कि भाई कैलकुलेशन करके बताओ ये वो। उसका माइंडसेट कुछ अलग हो जाता है जब वो एग्जाम लेता है तो उसे पता है कि नॉर्मल बंदे तो ये पढ़ेंगे ही। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा क्या ले सकता हूँ वो देखता है, तो ये चीज आप तैयारी कर सकते हो। राइट, बिल्कुल। क्वेश्चन आया है सर, कैन वी प्रिपेयर इन द रिमेनिंग 15 डेज? तो वैष्णवी, ये क्वेश्चन बहुत ओपन एंडेड है। वैष्णवी, आई थिंक यू शुड फर्स्ट टेल अबाउट योर प्रिपरेशन स्टेटस, क्या स्टेटस है, तभी बता पाएंगे कि 15 डेज। अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली इट इज नॉट सो इजी। अगर आप, इट इज योर फर्स्ट डे, और अगर आप 15 डेज में रिवीजन करने की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली सभी के पास यही इतना ही टाइम अवेलेबल है, तो यू शुड प्लीज मेक योर स्टेटस क्लियर। और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि व्हाट इज इन हैंड सैलरी, व्हाट आर द पर्क्स, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल। तो अभी भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं जानने में कि इस जॉब को ज्वाइन करना कितना वर्थ है उनके लिए, दे मे बी वर्किंग समवेयर एल्स। काफी लोग जो वर्किंग होते हैं वो लोग हमेशा कंपैरिजन करना चाहते हैं कि क्या हम उनका, अगर उनको एक हफ्ते की छुट्टी भी लेनी है तो उनको सोचना पड़ेगा कि यार इस जॉब के लिए क्या हमारे लिए सूट करेगी वो। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह के कैंडिडेट्स हैं जिनको ये जॉब अप्रोच करनी चाहिए, किनको ये जॉब सूट करेगी। जैसे सर मैं अपना थोड़ा बता देता हूँ। मैं पहले डेप्टी मैनेजर फाइनेंस था कोल इंडिया लिमिटेड में। तो आई वॉज इन E4 स्टेज, और E5 मेरा मैं 1 साल बाद ही ड्यू था। आपका कितना और एक्सपीरियंस हो गया था वहाँ पे, कितना एक्सपीरियंस हो गया था आपका ऑल इंडिया में? मेरा सर अराउंड 7.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, ओ, मतलब मोर देन 7.5 ईयर्स का मेरा तो आपका तो एक्सपीरियंस है। काफी सैलरी ड्रॉप हुआ हुआ है यहाँ पे आके। हाँ मेरा काफ़ी सैलरी ड्रॉप हुआ है अराउंड, हाँ काफ़ी सर मेरा सैलरी ड्रॉप हुआ था। हम्म। और बट मैं यही बोलूँगा सर कि जब आप गवर्नमेंट में ज्वाइन करते हो, ठीक है, वो देखो बहुत ज़्यादा क्लिशे ये आंसर है कि यार ये क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपके प्रायोरिटीज हो जाते हैं वो। बट अल्टीमेटली ना ये आप बहुत सारे फैसिलिटीज आपको इस तरीके से मिल जाते हैं विच इज नॉट काउंटेबल इन रुपीज टर्म। एनीवेयर, इन एनी जॉब, राइट राइट। नहीं जॉब आपको वैसा ही होता है। हम्म। तो इस तरीके से ऑब्वियसली आपको सैलरी कट होगा। जैसे अभी अभी क्या होता है, जो भी आपके लेवल 10 की सैलरी है बेसिक आपको 56,100 है, प्लस आपको 50% आपका डीए है उस पे, 10,800 आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है। फिर कुछ न्यूज़पेपर रिफ्रेशमेंट के या इंटरनेट के अलाउंसेस मिल जाते हैं आपको। आपका जैसे अभी क्या है कि एनपीएस में गवर्नमेंट इज कंट्रीब्यूटिंग। अब पहले 14% था, अब इस साल फर्स्ट ईयर में 18.5% दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग। इसके अलावा आपका एलटीसी है। इनिशियली जो आप जब ज्वाइन करते हो उसके 8 साल तक आपको, आप हर साल यू कैन टेक एलटीसी। जैसे 4 ईयर का ब्लॉक होता है, उसमें क्या है कि एक एक साल आप क्या करोगे, अपने होम टाउन जाओगे। बाकी 3 साल जो है, 1 साल तो आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जा सकते हैं। दो दो जो आपका एलटीसी बचा वो आप जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न और लद्दाख या लक्षद्वीप या अंडमान एंड निकोबार आप अंडमान जा जा सकते सकते हैं, हाँ। हैं। हाँ, तो इस तरीके से ये फैसिलिटी हो गया। प्लस आपको जो भी रेसिडेंशियल ये सब का फैसिलिटीज है इस तरीके से। तो बेसिकली जॉब थोड़ा जॉब प्रोफाइल बताइए कि किस तरह की जॉब प्रोफाइल है, ताकि लोग ये एक्चुअली में क्लैरिटी में आ सके कि किस तरह की जॉब है। क्योंकि कुछ लोग इसको कंपैरिजन करते हैं आईएएस से कि ये उस टाइप की जॉब है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये टेक्निकल जॉब है। तो इज लाइक थोड़ा सा और कैसा क्लैरिटी आ जाए बच्चों को। ओके, टोटल जैसे मैं बात भी कर रहा था सर आपसे, टोटल 6 अकाउंट सर्विस है। हम्म। जिसमें से ये अकेला सर्विस है अकाउंट सर्विस, जो ऑर्गेनाइज ग्रुप सर्विस है, प्लस जिसमें क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब बेसिकली मैं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा बाकी सब लोगों के लिए कि क्यों होता ये है कि जो सिविल सर्विस एग्जाम में आपके सर्विसेज होती हैं, उसमें आपकी डिफेंस अकाउंट सर्विस होती है, सिविल अकाउंट सर्विस होती है, और पोस्टल अकाउंट सर्विस होती है। तो इस तरह से वहां पर जो फाइनेंस वाली सर्विसेज होती हैं, उनके अंदर जो लोग सिलेक्ट होते हैं दे आर फ्रॉम द सिविल सर्विस एग्जाम।
और सिविल सर्विस एग्जाम कैन बी गिवन बाय एनीवन। तो हो सकता है कि एमबीबीएस भी जाकर के और फाइनेंस सर्विस में सिविल अकाउंट सर्विस सिलेक्ट हो जाए, एक इंजीनियर भी सिलेक्ट हो जाए, और सीए या फाइनेंस बैकग्राउंड से उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग फाइनेंस वाले वहां पर अपीयर करते हैं। तो होता ये है कि जब जो लोग सिलेक्ट होके जाते हैं, अब उनका जो बेसिक बेंट ऑफ माइंड है वो तो डॉक्टर वाला, इंजीनियर वाला होगा, तो उनके लिए जो फाइनेंस है वो नेचुरल नहीं है। डेफिनेटली वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दे विल हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। लेकिन जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी सेक्रेटरी, उनको चाहिए एक्सपर्ट लोग कि भाई आकर के पूरी चीज संभाल ले आते ही बंदा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस सर्विस से लोग सिलेक्ट होकर जाते हैं, उनको एक नेचुरल प्रेफरेंस मिलता है हर एक मिनिस्ट्री के अंदर, उनको एक अच्छी पोजीशन दी जाती है। मैंने भी देखा 2013 बैच से मेरे एक वो है मंजेश पोरवाल, मेरे फ्रेंड है, तो मैंने देखा है कि हमेशा ही व्हाट गुड एक्सपोजर वाइज इज वेरी हैप्पी कि सर काम बहुत अच्छा मिलता है मतलब यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट के अंदर आपकी एज ए प्रोफेशनल बहुत रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि आप गवर्नमेंट का ही हिस्सा हो और साथ में प्रोफेशनल भी हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव पॉइंट फॉर ज्वाइनिंग दिस सर्विस। अल्टीमेटली सर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हैं ना, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए, वहां पे लीन फेज भी आपको काम में मिलेगा, और ऐसे भी फेजेस मिलेंगे जब आप इतने बर्डन रहोगे काम से कि आपको मतलब जैसे बोलते हैं ना, 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं है। यस तो यस। वो फेजेस रहेंगे। अब जैसे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बंदा कहीं पोस्टेड हो, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हों बहुत सारे टाइम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज्वाइन करते हो तो एक लर्निंग कर्व भी रहता है आपका। आप ज्वाइन करते हो तुरंत नहीं हो सकता है कि आपको वैसी फैसिलिटीज मिले, लेकिन इवेंचुअली डाउन द लाइन क्या होता है कि पीपल विल रिकॉग्नाइज कि हाँ ये चीजें हैं। और ये जब आप सीए या सीएमए जब भी आप बनते हो तो आप में एक एडेड एडवांटेज आ ही जाता है, क्योंकि आपकी वो पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। अब वो आप कितना सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे आपने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ जैसे फंक्शंस होते हैं, वो क्या है कि एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं। लाइन का क्या है कि वो टॉप टॉप टू द बॉटम वो क्या करते हैं, काम करते हैं, उनका डायरेक्ट अथॉरिटी रहता है। हमारा क्या है कि वी आर पार्ट ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, हम एक्सपर्ट एडवाइस उनको देते हैं। अब अल्टीमेटली वो एडवाइजेस वो कितना वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज अप टू देम। अब ये चीज है हमारा। बट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत अच्छा फीडबैक है, और बहुत सारे जो मेरे सीनियर्स भी हैं वो काफी बहुत अच्छे पोजीशंस पे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो और बहुत रेस्पेक्टेड है अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस में। आई थिंक ये तो बहुत मतलब ये ऐसा एग्जाम है कि बहुत एक छोटे से एग्जाम से आपको डायरेक्टली ग्रुप एंट्री मिल जा रही है। ये आई थिंक बहुत ही एग्जाम में से एक एग्जाम है। अदरवाइज तो फॉरेस्ट एग्जाम हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सब में मल्टीपल लेवल होते हैं, और यहाँ पर आपका खुद का ही कोई जीएस का भी रोल नहीं है। हो सकता है कि अगर ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो बाद में जीएस वाला एंट्री भी डाल दें, जीएस वाला पेपर भी बना दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बढ़िया है इवेंचुअली मतलब। सर ये था कि हमने भी जब जब मैंने भी मान लीजिए हमने भी क्वालिफाई किया था, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कोई एग्जाम है, और इसके फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स है हम लोगों को पता नहीं था। अब जैसे जैसे सर इसके पीछे रीजन भी ये है सर कि पहले बहुत छोटा कैडर था हम लोगों का। अब जैसे क्या हुआ है, 210 बंदों का हमारा कैडर हो गया है, इस कैडर स्ट्रेंथ जो हुआ है। हम्म। इवेंचुअली जैसे जैसे ये स्ट्रेंथ बढ़ेगा या रिक्रूटमेंट रेगुलराइज होंगी ना, तो उन लोगों के पास एक अदर ऑप्शन भी रहेगा कि भाई वी कैन ऑल्सो ट्राई। जब भी आप ट्राई करो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के और प्राइवेट में ज्वाइन करने के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और प्रेफरेंसेस भी हैं। तो जिसको जैसा सूटेबल हो, बट ये कम से कम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक सिविल सर्वेंट की तरह काम कर सकते हो। राइट, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिविल सर्वेंट बनने के बाद में आपका खुद का कोर एरिया आपको मिले जरूरी नहीं है। हम्म। मतलब अगर आप सिविल सर्वेंट की तरह ज्वाइन करते हो और आप देखते हो, चाहे आप टॉप सर्विस में भी हो, लेकिन आपको प्रोफाइल ऐसी मिलेगी कि शायद आपको पसंद ना आए, और आप हम्म। सिविल सर्वेंट भी हो, आपको खुद की प्रोफाइल मिल रही है, तो ये भी एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन देता है। प्रोफेशनल आपका स्किल्स भी बढ़ रही हैं, आपकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ रही है मुझे लग रहा है, और आपको कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर है वो गवर्नमेंट का एक्सपोजर मिल रहा है। और अल्टीमेटली सर ये है कि आप ये माइंडसेट लेकर के चलो, जब आप यूपीएससी भी देते हो, सीएस सिविल सर्विसेज भी देते हो, तो नॉर्मली क्या होता है, बंदे क्या करते हैं, टॉप 3-4 सर्विसेज को ही टारगेट करते हैं। यस यस यस। बट आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप 3 सर्विसेज
बहुत लिमिटेड होती हैं। आपके और भी सर्विसेज होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो जब आप क्वालिफाई करते हो। तो इस माइंडसेट से आप ये सोचो। अब मैं आईएएस की जॉब से अपने सर्विस की जॉब को कंपेयर इसलिए भी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक डिफरेंट डोमेन का जॉब है, वो अलग सर्विस है। हम लोग कभी भी रहेंगे तो वी विल बी इन टच विथ, मतलब हम एडवाइजरी रोल में उनको हेल्प करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स कमिटीज में, जैसे कभी प्राइसिंग में हो गया या कुछ एक्सपर्ट चीजों में हम उनको हमारी जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि वी विल रिप्लेस देम, हाँ। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि हम लोगों को डेप्यूटेशन पोस्ट मिलती है। डेप्यूटेशन पोस्ट में जब आप जाते हो, देन आप उस पोस्ट पे जब जाते हो तो फिर आपको उस रैंक में आप सारा काम जो भी उस मिनिस्ट्री का है वो आप कर सकते हो। तो ये चीज है। बट अल्टीमेटली आपको ये है कि आप ये सर्विस में आपको जो स्कोप है वो अकाउंट से रिलेटेड है। आपको अकाउंट्स का ज्यादातर काम करना है और गवर्नमेंट रिलेटेड अकाउंटिंग आपको करनी है या जीएसटी का काम करना है। ये आपको माइंडसेट बना के चलनी है। वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन भी और भी आ रहे हैं जो कि बहुत रेलिवेंट है कि इज एनओसी रिक्वायर्ड फॉर पीएसयू? अगर कोई पीएसयू में वर्क कर रहा है तो क्या उनको एनओसी रिक्वायर्ड है? आपको सबसे पहले क्या करना है, इंटीमेशन तो देना था जब आपने अप्लाई किया था। आपने अगर इंटीमेशन दे दिया है, जैसे अब मैंने इस एडवर्टाइजमेंट का तो मुझे पता नहीं, हमने जब अप्लाई किया था उस समय ये था कि यू शुड इंटीमेट योर कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैंने इंटीमेशन दिया था। एनओसी वाज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट इन टाइम। इस बार एडवर्टाइजमेंट में क्या कुछ एडिशनल मांगा है ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हमारे टाइम में सिर्फ इंटीमेशन मांगा था एनओसी नॉर्मली। यूपीएससी लेता नहीं है, यूपीएससी किसी भी एग्जाम हाँ मांगता है। हाँ, दैट इज व्हाट आई थिंक कि यही पहले का भी पैटर्न है। You should intimate to not to UPSC, you should intimate to your employer. आशीष, आपने लिखा है कि आई हैव नॉट इंटीमेटेड टू यूपीएससी, यू शुड इंटीमेट योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट इज ओके। अगर आपने करंट ऑर्गेनाइजेशन को इंटीमेट कर दिया है दैट इज ओके। और यूपीएससी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मैटर, बहुत ज्यादा चीजों को, इस वजह से आपका रिक्रूटमेंट नहीं रुकेगा मोस्टली, जब तक कि आपकी कंपनी जाकर यूपीएससी में पूरा हल्ला ना मचा दे कि भाई इसको सिलेक्ट मत करो, ये हमारा बंदा है। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नहीं, यूपीएससी वो बहुत तभी होता है सर अगर कोई डाउटफुल इंटेग्रिटी वाला काम होता है या कंप्लेंट्स वाले होते हैं ना, कंप्लेंट्स है, देन हाँ। इन दैट केस एम्प्लॉयर आपको इंटीमेट करता है। क्योंकि अदरवाइज सर किसी के भी एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में ये नहीं दिया हुआ है कि दे कैन रेस्ट्रिक्ट एनी पर्सन। तो इसलिए अनलेस एंड अनटिल वो डाउटफुल इंटेग्रिटी का क्वेश्चन हो, नॉर्मली कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं करेगा। और कोई नहीं कर, यूपीएससी के नाम से भी ऐसे भी नहीं लोग करते। सब लोग काफी लिबरल एटीट्यूड है यूपीएससी हाँ ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी कंपनीज में सब लोग आपको सपोर्ट ही करेंगे कि चलो ठीक है, सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन करो जाके। गुड। सो और क्वेश्चन है सर, मेरा हाफ सिलेबस हो गया है, क्या 15 डेज में एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर पाऊंगा? अच्छा सौरभ, आपने कितना टाइम दिया था? आपने क्या ये साइड में भागते दौड़ते प्रिपरेशन की थी, आपने डेडिकेट 2-3 महीने लगाए थे इसके ऊपर? सर, मेरे टाइम में अ, क्योंकि क्या हुआ था कि मेरे टाइम में ये सिलेबस जो था वो मोरलेस हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो कवर हो ही जाता है। मैंने क्या किया था, अराउंड मेरे को याद है 15 डेज की तो मैंने लीव ली थी, अपनी ईयर ली थी कि भाई मेरे को 15 डेज घर बैठ के फिर पढ़ाई करनी है। क्योंकि एग्जाम्स, यूपीएससी के एग्जाम्स आप लाइटली नहीं ले सकते कभी नहीं भी ले लाइफ। सकते, बिल्कुल कंपटीशन तो है ही, कम से कम आपके हाँ, अदर्स पीपल, दे विल आउट कॉम्पीट यू। और इस बार तो और कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन तो इसलिए मेरा हाँ। लेकिन ये था कि हाँ 15 डेज से पहले मेरे सिलेबस हो गए थे। जो भी मैं ऑफिस से जब आता था, मुझे जितना भी टाइम मिलता था मैं ट्राई करता था कि मैं अपने सिलेबस तो कम से कम कंप्लीट कर लूँ। लास्ट 15 डेज मैंने सिर्फ रिवीजन किए थे। ट्राई किया था कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर है तो वो मैं याद करूँ या वैसे सॉल्व करूँ क्वेश्चंस को। ये मेरा मेन फोकस रहा था। तो राहुल शर्मा जी, आपका क्वेश्चन, आपका आंसर ये है कि मेरे हिसाब से अभी आपको 15 डेज अच्छे से डिवोट करने चाहिए, और ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि आप सिर्फ कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को क्वेश्चन आता है तो कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, आप मत सोचिए, एग्जाम दे के आइए मस्त। कुणाल गर्ग का क्वेश्चन है, वुड यू रिकमेंड ए बिग फोर एम्प्लॉय टू शिफ्ट टू दिस प्रोफाइल पर्सनली? जो बिग फोर में काम कर रहा है उसके लिए क्या रिकमेंड करोगे ये जॉब करना?
मतलब वैसे काफी पर्सनल टाइप ऑफ एग्जैक्टली क्वेश्चन। एग्जैक्टली अब मुझे आपके प्रोफाइल का तो पता नहीं। हाँ हाँ अ, राइट। हाँ, बट आई थिंक आपके प्रेफरेंसेस पे, अगर आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप यू आर कंफर्टेबल कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे सर्विस, क्योंकि क्या होता है जब आप प्राइवेट में जब ज्वाइन करते हो, जैसे मैं पीएसयू से आया था, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी, तो वो आप एक माइंडसेट बना के चलो कि अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो तो देयर विल बी पे कट्स, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। और अप टू सर्टेन लेवल आपको लगेगा कि हाँ ये पे कट्स थोड़े ज़्यादा है, बट जैसे ही क्या, मैं जैसे पीएसयू का एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या है कि लेवल 12 इज जॉइंट डायरेक्टर, लेवल 13 इज डायरेक्टर, ठीक है। जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर के जो बेसिक पे में डिफरेंस है वो अराउंड 30,000 40,000 है, और वो सिर्फ 4 साल में आप क्रॉस करते हो, ठीक है। सेम चीज अगर आप पीएसयू में रहते हो तो 4 साल में आप सिर्फ 10,000 इंक्रीमेंट का क्रॉस करते हो। तो इनिशियली तो आपको लगेगा कि आपका इंक्रीमेंट बड़ा धीरे हो रहा है, धीरे हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप डायरेक्टर लेवल पे 13 पे पहुंचते हो, अचानक आपको वो बूस्ट मिल जाता है। तो ये एक बड़ा बेसिकली जो ग्रुप ए की सर्विस है उसमें आप हो तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार अपना ध्यान नहीं रखेगी। ये जो टॉप मोस्ट ऑफिसर है वो सब ग्रुप ए में ही है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर क्यों ना हो। सब है। तो जो बेस्ट पॉसिबल सैलरी होती है वो सैलरी वो लोग रखते हैं। और अगर आप सोचो कि करोड़ों में कमाओगे तो उसके लिए तो फिर प्राइवेट सेक्टर है। फिर उसके अपने साइड इफेक्ट्स भी हैं वहाँ पर, उसके अपने इश्यूज भी हैं, जॉब इनसिक्योरिटी भी है वहाँ पे होती है। और आजकल तो सिक्योरिटी है, मेंटल स्ट्रेस भी है। मेंटल स्ट्रेस है, फिर आप वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, रिकॉग्निशन भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप स्विच ओवर करते रहो यहाँ से वहाँ। तो अपने वही अपने खुद की प्रेफरेंसेस वाला मैटर है। सर माय फर्स्ट रिवीजन इज डन, हाउ टू प्रोसीड फर्दर? तो लास्ट 15 डेज में क्या अप्रोच होना चाहिए? लास्ट 15 डेज में आप ये देखो कि जैसे यूपीएससी ने लास्ट के एग्जाम में जो टॉपिक्स एक्स्ट्रा पूछे थे, बीट ट्रांसफर प्राइसिंग के मेथड्स हो गए, या फिर कॉस्ट प्राइसिंग के, या फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कंपोजिशन हो गया, या फिर जो एडिशनल टॉपिक्स थे, अगर आपका रिवीजन ऑलरेडी हो चुका है तो आप देखो कि क्या मैं एक्स्ट्रा और कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं कर सकता हूँ। दूसरा, सबसे आपको जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, ताकि आप विदाउट कैलसी, ताकि आपके स्पीड बढ़े उससे, राइट। ये आप ये करो। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। हम लोगों ने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की है डायरी में आईएएस, आप वो देख सकते हैं। आप काफी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हमने डालने की कोशिश की है, एग्जाम रेलिवेंट पूरा एग्जाम, ओनली एंड ओनली फॉर दिस एग्जाम हमने कोशिश की है। एक क्वेश्चन आया है, सर इज कंसिडरेशन गिवन टू कैंडिडेट्स नॉट हैविंग एनी वर्क एक्सपीरियंस एज 3 ईयर एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल? तो आपके बैच में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनका एक्सपीरियंस ना हो और उनका सिलेक्शन हो गया हो बेस्ड अपॉन द टेस्ट एंड इंटरव्यू? मेरे बैच में मैक्सिमम सभी का एक्सपीरियंस था, और प्राइवेट सेक्टर से बहुत लोग थे। भले कुछ कम होगा या ज़्यादा होगा, बट इवेंचुअली सभी लोगों का एक्सपीरियंस था, क्योंकि डिजायरेबल तो मांग लेता है, बट इवेंचुअली जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था, दे हैड अ गुड, तब वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था उन लोगों का। और जब आप इंटरव्यू देते हो तो ऑब्वियसली जब आप बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन जब आप देते हैं इंटरव्यू, तो वो आपकी बातों में भी झलक जाता है, क्योंकि द पर्सन हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू वो भी काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और काफ़ी सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो वो एक एडेड एडवांटेज तो हो जाता है। बट ऑफ कोर्स, अगर आपके रिटर्न के मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो दैट कैन ओवरशैडो, मतलब अगर कंपेरेबिलिटी, अगर अगर आपका इंटरव्यू कम भी जाए तभी अगर आपका वो ज़्यादा है तो यू कैन मेक इट। राइट। तो बेसिकली मतलब पॉइंट ये है कि अगर आप टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले आते हो तो इंटरव्यू का रोल कम हो जाता है। तो बेसिकली अगर वो आपको प्रेफर नहीं भी करते हैं और आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स है तब भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। तो बेसिकली आपको टेस्ट पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। वेरी गुड। खुशबू अग्रवाल जी का क्वेश्चन है, सर हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट टू बी ऑन द सेफर साइड? तो कुछ ऐसा है कि हमें 120 के 120 अटेम्प्ट ना करें, कुछ क्वेश्चन छोड़ के आने चाहिए? व्हाट इज योर से ऑन दिस? सर वो तो जुडिशियस मिक्स होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप कितना सही कर पा रहे हो। देखो, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे प्रीलिम्स आप देते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 60 करने हैं, 70 करने हैं, 80% करने हैं, ये कोई नहीं।
सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि लास्ट ईयर कट ऑफ कितना गया था, वेदर यू आर एबल टू एक्सीड दैट कट ऑफ और नॉट, आप उतना कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि माइनस जितना आप करोगे, मतलब जितना रॉन्ग आंसर करोगे उतने आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपका कितना एक्यूरेसी हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ये आंसर। कोई मैं जितना अटेम्प्ट कर रहा हूँ उतना ही सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब राइट। मेरे लिए वो हो सकता है कुछ डिफरेंट हो, आपके लिए कुछ डिफरेंट हो, आप कितना वो कर रहे हो। बेसिकली तो है कि आप ब्लाइंड गेम आपको नहीं खेलना है, लेकिन अगर आप उस टॉपिक को नियर बाय टच कर पा रहे हो तो अटेम्प्ट करना चाहिए, और आप नेगेटिव की तरफ ना जाए, ये कोशिश करनी है आपको। राइट। एक क्वेश्चन आया है इंटरव्यू को लेके, काफी क्वेश्चंस हैं, बट आई थिंक इंटरव्यू वी शुड टारगेट लेटर ऑन, बाद में सेशन रख लेंगे, पहले आप एग्जाम दीजिए, एग्जाम का पहला फोकस होना चाहिए। क्वेश्चन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, सिर्फ 199 एप्लीकेंट है, शायद ये आरटीएस इन्फॉर्मेशन निकाली है इन लोगों ने, तो क्या इनको प्रिपेयर करना चाहिए? इन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, कंपटीशन कम है, तो रिजर्वेशन की वजह से इनको उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा। सर एग्जैक्टली अब क्या कंपटीशन है या 199 में भी कह क्या सकते बनने हैं। हैं। अब राइट। मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं, अब उनको 36 में से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कितना मिल रहा है वो भी आप देख लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एग्जैक्टली एक्चुअली मुझे काफी, हाँ काफी, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, 2022 में कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना था? 201 था या 211 था, ऐसे कुछ था। सर एग्जैक्ट मैं उतना उस पे मुझे नहीं पता है, क्योंकि उतना मैं ध्यान मैंने नहीं दिया था कि क्या कट ऑफ दिया था। ठीक है, फाइन। ओके, इंटरव्यू को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज क्या हो सकती है, हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, व्हाट लैंग्वेज नीड टू बी प्रेफर्ड, इंटरव्यू में कोई हिंदी इंग्लिश वाला क्या ऑप्शन होता है, वो सब क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी इंग्लिश में आपको अल्टीमेटली कम्युनिकेट करना है। टू द एक्सटेंड आई एम कंसर्न, मतलब मैंने तो इंग्लिश में ही दिया था, ट्राई किया था। इंटरव्यू बस ये है यार कि आपको आराम से सांस लेके जो वो पूछ रहे हैं अच्छे से जवाब देना है। टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना, टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है जो पैनल होता है उसमें टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं। जनरलाइज जो आपके जीएस के क्वेश्चंस है वो भी रहते हैं। जैसे मुझे याद है क्लाइमेट से रिलेटेड पूरा क्वेश्चंस पूछा गया था, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छा। पूछे थे। ओके। तो वो इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरा वो ऑल इंडिया में थे आप? जेपीएससी वाला पॉइंट, हाँ, और यूपीएससी वाला पॉइंट हो। बट Right. इवेंचुअली मेरे साथ मेरे केस में डाइवर्सिफाइड पॉइंट्स थे। अब मुझे ये नहीं पता कि क्योंकि अल्टीमेटली वो क्या करते हैं आपके एक्सपीरियंसेस से पूछते हैं। Right. तो हो सकता है मेरे केस में वो एक्सपीरियंसेस से वो ज़्यादा वो इसलिए टारगेट कर रहे हो। हम्म। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस कुछ और होंगे तो शायद उनसे कुछ और पूछे। राइट। ओके, बाकी क्वेश्चंस तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए। इंटरव्यू वाला पार्ट तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज कैन डिस्कस लेटर। ओके, ये एडमिट कार्ड रिलीज कब होता है? आई थिंक 1 वीक पहले होता है, एडमिट कार्ड 1 वीक पहले होता है, हाँ। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी टू कंप्लीट द पेपर विद इन टाइम? स्ट्रैटेजी भी यही था यार कि बस मुझे को बस खत्म करना है। 1 मिनट के अंदर एक ट्राई किया था मैंने कि जैसे मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं तो 30 मिनट के अंदर मैंने देखा था कि मैं वेदर आई एम एबल टू कंप्लीट 30 क्वेश्चंस और नॉट। ठीक है, हर 30 30 मिनट में मैं चेक करता था कि मैंने कितना कंप्लीट किया है। तो उस तरीके से आप अपना वो कर सकते हो कि टारगेट सेट कर सकते हो कि हाँ, तीस कुछ इस मिनट तरह में की इतना। चीजें। यस, जैसे प्रीलिम्स में हम लोग करते हैं ना, कि एक तो आप ओवरशीट को रेगुलरली मार्क कीजिए, अगर आपका 100% श्योर है तो वो मार्क करते चलिए, लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। कई बार क्या होता है कि वो हम एमआर शीट के लिए सर मैंने क्या किया था, जैसे प्रीलिम्स पता नहीं वो सबके लिए पता नहीं एप्लीकेबल है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं करता हूँ तो पेंसिल से पहले मैं पॉइंट 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 जो मेरे वो रहते हैं सर्कल्स रहते हैं उसमें पॉइंट कर देता हूँ। हो सकता है दूसरे लोग उसी समय कर दें। मैं क्या करता हूँ पॉइंट 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 करके ताकि करूँ वो। ये मेरे पे स्ट्रैटेजी में मतलब ये एप्लीकेबल है, बाकी लोग साथ साथ भी कर सकते हैं। बट ये था कि मैंने जैसे
हो सकता है इस कारण से भी मेरे 5-6 क्वेश्चन जो छूटे वो इसलिए भी हो सकता है कि मैंने लास्ट में सर्कल किए थे। इसमें एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ये होती है कि रेगुलरली आप जैसे हर 20-30 मिनट में जितने भी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, आप श्योर हो कि मार्क करने ही है आपको, उतना मार्क कर दीजिए, ताकि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर कम होता है कि लास्ट में जाके सारे क्वेश्चन मार्क करने हैं। क्योंकि आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए कि लास्ट के 10 मिनट में तो प्रेशर बनना ही बनना है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको तुरंत डिसाइड करने पड़ेंगे कि करने हैं, छोड़ने हैं, क्या करना है, कुछ जुड़ गया। तो लास्ट मोमेंट पे मेरे साथ क्या हुआ था एक बार कि मैंने 4-5 क्वेश्चन लगातार यूपीएससी एग्जाम में लगातार गलत कर दिए मैंने। जैसे होता है ना कि ये क्वेश्चन नंबर 25 की जगह पे 26 से मैंने मार्क करने स्टार्ट कर दिए, 26 मार्क करने थे, 26 मार्क कर दिए। तो ये वाली गलती बहुत लोगों की होती है। तो ये हाँ चीज आप, फिर तो, हाँ फिर देन इन दैट केस हाँ वैसे ही करना चाहिए। इज इट अलाउड टू टेक पेन पेंसिल एंड वॉश इन द एग्जाम? वॉश तो अलाउड होती है, आपकी एनालॉग ब्लैक वॉश। पॉइंट पेन, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपका और पेंसिल। ब्लैक पॉइंट, वो सब लिखा होगा आपके एडमिट कार्ड में, लिखा होगा सारी चीजें। डू वी गेट गवर्नमेंट रेजिडेंस एंड दिल्ली इज द मेन प्लेस ऑफ पोस्टिंग? ये राधिका का क्वेश्चन आया, क्योंकि कुछ फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए पोस्टिंग का मैटर होता है। तो दिल्ली के अंदर पोस्टिंग मिलती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन रेजिडेंस के बारे में तो सौरभ बताएंगे, रेजिडेंस की क्या पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में। और जी, गवर्नमेंट रेजिडेंस मिलता है दिल्ली में, क्वेश्चन है। सर फिर से एक बार रिपीट करना अ, एक्चुअली तो। क्या क्या दिल्ली में गवर्नमेंट रेजिडेंस मिलता है? और प्लेस ऑफ पोस्टिंग अगर दिल्ली ही रहती है मोस्टली, या प्लेस ऑफ पोस्टिंग का क्या रहता है? जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट ग्रुप ए सर्विस ज्वाइन करते हैं तो उनको ई संपदा में लॉग इन करके, क्योंकि दिल्ली में इतने सारे ऑफिसर्स हैं, सबको ऑप्शनिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। मैं क्योंकि जीएसटी में हूँ तो मुझे जीएसटी पूल से क्वार्टर मिला हूँ द्वारका में। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या वो सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। आप अ, किस डिपार्टमेंट में हो, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे दिल्ली दिल्ली एनसीआर में थोड़े क्वार्टर्स का इशू है, बट मेरे केस में मुझे मिल गया था क्वार्टर। अच्छा, ओके, मैं जीएसटी डिपार्टमेंट की वजह से आपको मिल गया होगा, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट के जी पास में जी अपना कुछ टूल जी होगा जी। उनका। बाकी मेरे और कलीग्स हैं उनको भी मिला है, बट वो उनको उनको पार्टिसिपेट करना पड़ा था उस ऑप्शन में। क्योंकि क्या होता है कि और भी लोग, मिनिस्ट्रीज के बहुत सारे लोग रहते हैं और वो अप्लाई करते हैं। तो फिर उस केस में सीनियरिटी भी देखी जाती है, कितने नंबर ऑफ ईयर सर्व करें। तो इस कारण से हो सकता है आपको थोड़ा डिले हो उसमें क्वार्टर अलॉटमेंट में। बट अगर आपको कुछ अच्छा प्रोफाइल मिला है या उस तरीके से है तो आपको मिल सकता है। जिन लोगों को कैलकुलेशन, कैलसी एक्सेल शीट की हैबिट है, वो कैसे हैबिट बनाए मैनुअल कैलकुलेशन की? आई थिंक ये तो रफ पेपर पे सॉल्व करिए, फिर प्रैक्टिस तो होगी, वही है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक वी हैव टेकन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, हमने सारे क्वेश्चंस को ले लिया है। वी कैन वाइंड अप द सेशन नाउ। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, आपके लिए हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सौरभ फॉर योर थैंक यू फॉर सर। योर थैंक यू। इम्पोर्टेंट टाइम। और सभी लोगों को मेरी विशेष है, सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और देखिए, सारी मेहनत सारे एग्जाम में लास्ट मोमेंट पे ही होती है, तो बिल्कुल हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जॉब मेरे लिए है, तो सब कुछ छोड़ के लग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तब डिसाइड कर लेना कि मैं ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है ना? अभी मत सोचो कि जो वर्थ है या नहीं है। अगर आप उस प्रोसेस में हो तो करो उसको, क्या प्रॉब्लम है? मतलब अब आपने देखा, आपको पसंद आई जॉब, तो तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हो, तो फिर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब है, जॉब मिल जाए उसके बाद बोल देना कि हमने जॉब नहीं की थी, हमने छोड़ दी थी। लेकिन पहले सिलेक्ट तो हो जाओ, अभी इतना क्या सोचना है। और फिर 15 डेज बहुत होते हैं, 15 डेज सफिशियंट है। आपका बैकग्राउंड है सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को। सभी में आपका बैकग्राउंड है, और आपको नहीं पता कि कब जब आप पढ़ते हो लास्ट मोमेंट पे, तो रिसेंसी वाला फैक्टर भी एक होता है। लास्ट मोमेंट पे जो चीजें हम पढ़ते हैं, वही चीजें बहुत याद रहती है हमें, चाहे वो एग्जाम से निकलते ही भूल जाए। so, ये चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच अगेन सौरभ। थैंक यू सर। मेरा भी बेस्ट विशेष है सभी को कि आप अच्छे से सब लोग तैयारी करो। और और बाकी इंटरव्यू के लिए एक बार फिर से सेशन करेंगे, क्योंकि सौरभ के भी बहुत अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स आए थे। एंड आपको पता चल गया होगा, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, मतलब बात करके ही इज वेरी 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 रूटेड इन द थिंग्स।
डीपली एक्सपीरियंस्ड भी है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है अगर ऐसे ऐसे पर्सन आपको गाइड करें इंटरव्यू के लिए। तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा फिर इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करेंगे, जब जिन लोगों की इंटरव्यू बुलाएंगे उसके लिए फिर इंटरव्यू सेशन रखेंगे। तो आपका सिलेक्शन होगा तो सौरभ विल बी देयर टू वेलकम यू एज ए सीनियर। थैंक यू वंस अगेन एवरीवन।